السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم يجعل له عوجا الحمد للہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ناموں کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے پیارے پیغمبر کے پیارے اسماء، پیارے پیارے نام آپ بھائیوں کے سامنے عرض کیے گئے۔ آج انشاءاللہ
قرآن مجید سے بڑے پیارے موتی اور ہیرے اور جواہرات آپ بھائیوں کے لیے منتخب کر کے لایا۔ اللہ پاک مجھے محبت سے بیان کرنے کی اور آپ کو محبت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا عنوان پہلے سماعت فرما لو، اس کا بہت فائدہ ہوگا، مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی، آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آج کا بڑا پیارا عنوان پیارے رسول علیہ السلام کے پیارے اعضاء، مبارک اعضاء، آپ کا دل مبارک، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کے ہاتھ مبارک، آپ کا سینہ مبارک، وہ اعضاء جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وہ تفصیل سے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ آپ اس سے اندازہ فرما لو گے کہ رب کائنات کو اپنے پیارے حبیب سے کتنا پیار ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے جسم مبارک کے پیارے اعضاء کا تذکرہ بڑی محبت کے ساتھ کیا ہے۔ کہیں تو قلب محمد کا ذکر ہے، اور کہیں وجہ محمد کا تذکرہ ہے، اور کہیں صدر محمد کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ذرا محبت سے سماعت فرماتے جائیے، اپنے گھٹنے چھوڑ کر اور دیواروں کو خیر باد کہہ کے اپنے رب کے آسرے اور چند منٹوں کے لیے بیدار، ہوشیار اور خبردار ہو کر اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی حاضری اپنے درگاہ کے اندر، اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے۔ آؤ ذرا سب سے پہلے پاک پیغمبر علیہ السلام کا دل مبارک، قلب اطہر، حدیث پاک میں ہے ان اللہ نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد۔ رب کائنات نے ایک مرتبہ محبت کے انداز میں ساری کائنات کے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، ہر ایک کا دل، تمہارا دل، میرا دل، ہمارے ماں باپ کا، انبیاء کا، صحابہ کا، سب کا دل دیکھا۔ فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد۔ اللہ پاک نے دیکھا تو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ساری کائنات کے دلوں سے زیادہ خیر والا نکلا۔ سبحان اللہ۔ قلب محمد کس قدر اللہ پاک نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اب یہاں آپ کے سامنے جو پاک کلام کی تلاوت کی ہے، اس کا ذرا پس منظر اور شان نزول نوٹ فرما لو۔ یہودی کہتے تھے کہ جو فرشتہ جبریل ہے آپ علیہ السلام پر وحی لے کے آتا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، ہماری دشمنی میں آیتیں لے کے آتا ہے، یہ یہود کہا کرتے۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا، لوگوں سن لیجئے، قل من کان عدوا لجبریل، اعلان فرما دیجئے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام، جو جناب جبریل کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، رب کائنات نے جو اپنا کلام اتارا ہے، آسمان سے جو قرآن آیا ہے، وہ قرآن نازل کس پہ ہوا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کے قلب اطہر پر۔ کون لے کر آئے؟ جناب جبریل لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ وہ مبارک دل کس قدر برکتوں والا اور عظمت اور شان والا، جس دل پہ آسمان سے رب کائنات نے اپنا قرآن نازل فرما دیا۔ اللہ ہمیں قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ قلب محمد ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اس میں بشارت ہے، ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور فرمایا یہ اعلان کر دیجئے، من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، فَإِنَّ اللَّهَ،
अदुव्वुन लिल काफिरीन। जब रब कायनात ने सारी कायनात के दिलों को देखा, फवजदा क़ल्ब मुहम्मदिन मिन खैर क़ुलूबिल इबाद, और सारी कायनात के दिलों से आला दिल इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और अल्लाह ताला का पाक पैगंबर की प्यारी हदीस है, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी तस्वीरें नहीं देखता, किसका रंग गोरा है, किसका रंग काला है, वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे अमल देखता है। तो सारी कायनात के दिलों से सबसे ज्यादा अतहर और ताहिर और मुतहर और पाकीज़ा और मुबारक दिल किसका? जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस दिल पे रब्बे कायनात ने अपना कुरान नाज़िल फरमाया है। ये तो कल्बे मोहम्मद है। आओ ज़रा मेरे साथ साथ चलते जाइए, अपने चेहरे मुबारक मेरी तरफ रखिए। अब तज़किरा होगा वजह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पाक पैगंबर का चेहरा मुबारक। कुर्बान जाए, मदीना पाक में 18 महीने अल्लाह के प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम इस तरफ शमाल की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। और ये किबला जो बैतुल मुक़द्दस है, जो मस्जिद अक्सा है, ये बनाया गया। 18 महीने गुजर गए, आप अपना चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाते हैं और ये तमन्ना करते हैं और ये दुआ करते हैं, या अल्लाह जो जनूब का किबला है, जो बैतुल्ला है, जो मक्का मुकरमा है, इसको किबला बना दिया जाए। इस सिलसिले में 18 महीने गुजर गए। आखिरकार अल्लाह पाक ने आसमान से अपना कुरान नाज़िल फरमा दिया और फरमाया, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाए, अल्लाह के पाक पैगंबर आपका चेहरा मुबारक जब आसमान की तरफ उठता है, हम वो चेहरा देखते हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर का चेहरा मुबारक। और ज़ियारत करने वाला और देखने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन है। जब आपका चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठता है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, अल्लाह पाक ने ऐलान फरमा दिया, आपका चेहरा मुबारक जब आसमान की तरफ उठता है और आप दुआ करते हैं, आप तमन्ना करते हैं, आप ख्वाहिश करते हैं कि बैतुल्लाह को किबला बना दिया जाए, हम आपका चेहरा देखते हैं। अब अल्लाह की तरफ से ऐलान आता है। ऐलान क्या आता है? फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, सारी दुनिया रब की रज़ा तलाश करे और रब्बे कायनात अपने प्यारे पैगंबर की रज़ा और खुशी के मुताबिक ऐलान फरमा दे। 18 महीनों के बाद अल्लाह के नबी, हम आपका चेहरा मुबारक जब आसमान की तरफ उठता है, हम देखते हैं, जाओ हमने ता क़यामत ऐलान कर दिया, आपने खाना काबा को, बैतुल्लाह को, मक्का मुकरमा को पसंद किया है, हमने ता क़यामत मस्जिदुल हराम को खाना काबा करार दे दिया है। सुबहान अल्लाह। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाए, कहीं कुरान पाक में क़ल्बे मोहम्मद का तज़किरा है, कहीं कुरान मजीद में वजह मोहम्मद का तज़किरा है। आओ ज़रा, आज उन्वान बड़ा प्यारा है, इंशाअल्लाह सुनना भी प्यार से, सुनाना भी प्यार से। अल्लाह ये मोहब्बत कबूल करके मुझे और आप सबको माफ़ फरमा के अपनी जन्नत का वारिस बना दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और मोहब्बत से सुन लीजिए, जब आपको तरस आ जाए, जब आपके दिल में मेरे बारे में तरस आ जाए, तो उस तरस के अंदाज में, मोहब्बत के अंदाज में ये दुआ कर दिया करो, या अल्लाह इस फ़कीर को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत का वारिस बना दे। और सुन लीजिए, मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा यही दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह
इन फ़कीरों को जहन्नम से आज़ाद करके अपनी जन्नत का वारिस बना दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आओ ज़रा मेरे साथ साथ चलते जाइए अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक के प्यारे अज़ा, कहीं तो क़ल्बे मोहम्मद का ज़िक्र है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहीं वजह मोहम्मद का तज़किरा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहीं अल्लाह पाक ने अपने पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारी और मुबारक आँखों का तज़किरा फरमाया है। कहीं क़ल्बे मोहम्मद है, कहीं वजह मोहम्मद है, कहीं आईने मोहम्मद है। पाक पैगम्बर की आँख मुबारक बेबाबरकत है, और एक मुकाम पर नहीं कई मुकामात पर रब के कुरान में मेरे पाक पैगम्बर की मुबारक आंखों का तज़किरा है। वो निगाह भी बाबरकत है, वो आंख भी बाबरकत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ज़रा सुन लीजिए, ये 16वां पारा है, अल्लाह पाक का पाक कुरान है। सूरत का नाम सूरत ताहा है और आखिरी रकू मुबारक है। फरमाया ऐ मेरे पाक पैगम्बर फस्बिर अला मा यक़ूलूना, काफिर आपको साहिर कहते हैं, मजनून कहते हैं, दीवाना कहते हैं, आप इस पर सब्र से काम लीजिए। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सि व क़ब्ला ग़ुरूबिहा, सूरज तुलू होने से पहले और सूरज ग़ुरूब होने से पहले अपने अल्लाह के लिए तस्बीह पढ़ते रहो। फजर की नमाज है, असर की नमाज है, और हदीस में आता है जो खुश नसीब बंदा इन दो नमाजों की हिफाजत करता है अल्लाह उसे जन्नत भी देगा और अपनी जन्नत में रब्बे कायनात उसे अपना दीदार भी नसीब फरमाएगा। फरमाया ये दो नमाजें पढ़ते रहो, सूरज तुलू होने से पहले और ग़रूब होने से पहले, और हम आपको इतना देंगे लअल्लाह का तर्जा, अल्लाह के नबी आप राज़ी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। अल्लाह ताला चाहता है मेरे पाक पैगंबर राज़ी हो जाएं। अरे मोमिनो तुम भी ये तमन्ना बना लो, हमने इंशाअल्लाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत पर और हदीस पर अमल करके आकाए दो जहां को राज़ी करना है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आओ ज़रा आपके आईने मोहम्मद वला तमुद्दन्न ऐनैका, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी आंखें ऐसे काफिरों की तरफ ना किया करो। ऐनैका, कहीं कल्बे मोहम्मद है, कहीं वजह मोहम्मद है, कहीं आईने मोहम्मद है। वला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजा मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया। काफिरों के पास बड़ी दौलत है, लेकिन सुन लीजिए भाइयों और नोट कर लीजिए, हर काफिर के पास ज्यादा दौलत नहीं होती। कोई भूखे मरने वाले भी होते हैं, तंगदस्त भी होते हैं। कोई काफिर दौलतमंद है, कोई फकीर भूखा है। अल्लाह पाक ने अपने पाक पैगंबर को फरमाया वला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजा मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया। जो काफिरों को दुनिया की चमक है, दुनिया का कर्रो फर है, दुनिया की रोशनियां हैं जो काफिरों को दी है। ऐ मेरे प्यारे हबीब अपनी आंख मुबारक से उन काफिरों के माल को देखा ना करो, देखा ना करो। कभी ऐसा होता है जब बंदा देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, फिर उसके दिल में तमन्ना होती है हाय 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 मुझे दुनिया का माल मिल जाए, तो ज्यादा देखा भी ना करो। वला तमुद्दन्न ऐनैका, ये तो एक मकाम है। पारा नंबर 16 है, सूरत का नाम सूरत ताहा है और आखिरी रकू मुबारक है। आओ जरा एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह के पाक पैगंबर के आंख मुबारक, निगाह मुबारक का तज़किरा। वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, सूरह नजम है और 27वां पारा है। रब्बे कायनात ने अपने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिराज शरीफ पे बुलाया
اور اپنی نشانیاں دکھائی، اللہ پاک نے وہاں بھی اپنے پاک پیغمبر کے مبارک نگاہ کا تذکرہ کیا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، اللہ پاک نے جو فرمایا اے میرے حبیب یہاں دیکھنا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، وہ نگاہ بھی بڑی مبارک ہے۔ اللہ نے جہاں فرمایا وہیں آپ نے دیکھا، اس سے آگے نہیں دیکھا، اس سے دائیں نہیں دیکھا، اس سے بائیں نہیں دیکھا، جو اللہ نے فرما دیا۔ معراج شریف کی رات میں اے میرے حبیب آپ نے یہی دیکھنا ہے، پیارے حبیب نے وہی دیکھا ہے، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے۔ ما زاغ البصر، زاغ البصر کا معنی اللہ کے پاک پیغمبر کی مبارک نگاہ ہے۔ معراج شریف کا واقعہ ہے اور 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ دائیں دیکھا ہے نہ بائیں دیکھا ہے نہ اس سے آگے دیکھا ہے۔ اور حدیث میں بڑی پیاری دعا ہے، وَعِلِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اے اللہ میری آنکھوں کو، میری نگاہ کو خیانت سے محفوظ فرما لے۔ محبت سے آمین کہو، یا اللہ ہم سب کی آنکھوں کو، ہماری نگاہوں کو خیانت سے محفوظ فرما لے۔ اللہ والو، دنیا کی طرف دیکھ دیکھ کر کبھی دل میں تمنا آتی ہے، رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کی چمک ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر ان کی طرف زیادہ نگاہ اٹھا کے دیکھا بھی نہ کرو۔ اور اللہ پاک نے آخرت میں برکت رکھی ہے، فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، دنیا میں مزین کیا گیا ہے دنیا کے مال کو، لیکن مومن جو ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ہر حال میں اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہم اجرنی من النار واسألک الجنۃ الفردوس، اے پاک پروردگار ہم دونوں ہاتھ باندھ کے تیری منت کرتے ہیں، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اپنی جنت کا وارث بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے چہرہ مبارک کا تذکرہ ہے، کہیں آپ کی نگاہ مبارک کا ذکر ہے اور کہیں قربان جائیں محبت سے دیکھیے اپنے چہرے مبارک میری طرف کیجئے۔ رب کے قرآن میں اللہ پاک نے ایک مقام پر ذکر فرمایا لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان بھی مبارک ہے۔ اور پنجابی زبان میں شعر پڑھتے ہیں نا اللہ والے، وہ دی ایک اکیلڑی جان سے سارا جگ دشمن اس دا سارا جہان سے، سچی گل تے مٹھی اس دی زبان سی، تائیں ساری دنیا سے چھا گیا۔ زبان محمد ہے، لسان محمد ہے۔ اور سن لیجئے، میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا اور آج بھی سن لو، لوگوں نے ایک جھوٹ بنا رکھا ہے کہ جیڑا بندہ کوڑا ہوندا ہے نا وہ کھرا ہوندا ہے۔ اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، میرے پاک پیغمبر میٹھے بھی کھرے بھی۔ اللہ اکبر۔ اور میری دلیل کا جواب دو، اگر آپ کے پاس ہے میٹھے بھی کھرے بھی، لوگوں نے کیسا جھوٹ بنا رکھا ہے جی کوڑا بندہ کھرا ہوندا ہے، جیڑا بندہ میٹھا ہوئے نا دال آ لیندا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور اگر آپ کے پاس جواب ہے تو جواب دیجئے۔ اللہ پاک کا قرآن سنیے، لسان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے آپ کی زبان مبارک کے ساتھ۔ اور دوستو کیسا منظر ہوگا، مسجد نبی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر قرآن پڑھتے ہیں، صحابہ قرآن سنتے ہیں، اور قرآن سنانے والی زبان جو ہے اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی لسان محمد بھی بابرکت ہے، کہیں قلب محمد ہے، کہیں وجہ محمد ہے، اور کہیں عین محمد ہے، اور کہیں لسان محمد ہے۔ آؤ ذرا محبت سے میرے ساتھ سنتے جائیے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ
लिलमुत्तकीन व तुनज़िर बिही कौमन लुद्दा। हमने कुरान को बड़ा आसान किया है। और रब्बे कायनात ने सूरह अल-कमर के अंदर 4 मरतबा फरमाया है। कितनी मरतबा? 4 मरतबा। क्या फरमाया है? वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को बड़ा आसान किया है। आओ, है कोई नसीहत हासिल करने वाला? फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसाने का। इस आयत करीमा में अल्लाह के पाक पैगंबर की लिसान मुबारक का तज़किरा है। मेरे भाइयों, जब कुरान पढ़ते हैं मोहब्बत के साथ इस पर गौर करते चले जाइए। और ज़रा एक बड़ा प्यारा मकाम है, आपका सदर मुबारक है, सीना मुबारक है। रब्बे कायनात ने आपके मुबारक सीने का तज़किरा भी कुरान में फरमा दिया है। आओ ज़रा मोहब्बत से नोट फरमाइए। सूरत का नाम सूरह अलम नशरा। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, भाई चेहरा मेरी तरफ कर लो और मोहब्बत से देखते जाइए। उन्वान भी मोहब्बत वाला, सुनना भी मोहब्बत से है और बयान भी मोहब्बत से। अल्लाह ये मोहब्बतें कबूल फरमा ले, अपनी ज़ात के लिए, अपनी रज़ा के लिए कबूल करके और माफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ पाक परवरदिगार, तू माफ़ी को पसंद करता है, हम सबको माफ़ फरमा दे। बड़ा प्यारा तज़किरा पाक पैगंबर का सीना मुबारक। अल्लाह अकबर। अल्लाह का कुरान बोलता है, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक। क़ल्बे मोहम्मद का जिक्र तो सुना, लिसाने मोहम्मद का, वजह मोहम्मद का, ऐने मोहम्मद का और बसरे मोहम्मद का। और ज़रा रब के कुरान से सुनिए अल्लाह के पाक पैगंबर का प्यारा सीना। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक। लोग दुआ करते रहे, रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। अल्लाह मेरे सीने में, मेरे दिल में दीन की मोहब्बत डाल दे। अल्लाह फरमाते हैं, हमने अपने प्यारे हबीब के मुबारक सीने को पाक साफ कर दिया। अलम नशरह लका सदरक। क्या हमने आपका सीना नहीं खोला है? व वज़अना अन्का विज़रक। आपसे जो आपका बोझ है उसको दूर कर दिया है। आपके ऊपर बोझ क्या था? सुन लीजिए भाइयों और नोट कर लीजिए अपने दोनों कान खोलकर। प्यारे पैगंबर पर बोझ क्या था? बोझ ये था कि अल्लाह मेरी सारी उम्मत को माफ़ फरमा दे। दुआएं करते, अल्लाह पाक से इल्तिजाएं करते, सारे लोग नेक बन जाएं, नमाजी बन जाएं, हलाल खाने वाले। ये आप पर बोझ था। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरका। इतना बोझ, आप इतना गम करते, इतना फिक्र करते और इतने दुआएं और इल्तिजाएं करते। अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। जब ताइफ के गुंडों ने आप पे पत्थर बरसाए, आसमान से रब का फरिश्ता आ गया, इनको चक्की में पीस दिया जाए। प्यारे आका दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इनके पास इल्म नहीं है। अल्लाह पाक ने अपने पाक पैगंबर के सदर मुबारक का तज़किरा फरमाया और हदीस सुन लीजिए और नोट फरमा लीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फ़ुरजा सक़्फ़ु बैती। अल्लाह पाक के फरिश्ते आए, हमारे घर की छत खोल ली गई, मुझे आसमान पे ले जाया गया, मिराज शरीफ कराया गया और मिराज शरीफ से पहले आपका सीना मुबारक अल्लाह के फरिश्तों ने खोला। फ़मुलिया हिकमतम व ईमाना। और जमजम के पानी से धोकर हिकमत के साथ और ईमान के साथ भर दिया गया। अलम नशरह लका सदरक। ये शरह सदर है, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आते हैं। मिराज शरीफ की रात का वाक़या है। हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। वरफ़अना लका ज़िक्रका। हमने आपकी शान को बुलंद किया है। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। जो आपका दुश्मन है वही बेनामो निशान होने वाला है।
आओ ज़रा मैं आखिर में हदीस का बड़ा प्यारा सच्चा और सच्चा मोती, ये हदीस मुबारक की किताब है। लोग मोबाइल की बातें करते हैं, हम हदीस खोल के आपके सामने पेश करते हैं। हदीस मुबारक की किताब है। अल्लाह के पाक पैगंबर की बेअदबी करने वाले और गुस्ताख, अल्लाह ने उन जालिमों को नेस्तो नाबूद फरमा दिया। और दुआ कीजिए अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत दे, अगर हिदायत नहीं है तो अल्लाह इनको तबाह व बर्बाद फरमा दे, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क फरमा दे। जो मेरे पाक पैगंबर की बेअदबी करते हैं, आपका जो गुस्ताख है दुनिया में भी जलील है और कल क़यामत को भी रसवा है। अल्लाह ऐसे जालिम पे बेबहा लानते नाज़िल फरमा दे। अब हदीस सुनिए, ये हदीस मुबारक है, सुनन कुबरा लिल बहकी है, हदीस का नंबर 17,731 है। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना मुबारक में 5 बेनसीब आदमी थे। एक का नाम असवद है, दूसरे का नाम भी असवद है, ये मुकम्मल हदीस पाक है। तीसरे का नाम वलीद है, एक का नाम हारिस है, एक का नाम आस है। ये बकवास करते और आपको तमस्कुर करते। अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया, 14वां पारा है, सूरत का नाम सूरतुल हिजर है। इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन। इन 5 के लिए आसमान से जनाबे जिब्रील आए। एक का नाम वलीद है, हजरत जिब्रील ने उस वलीद जालिम की बगल की तरफ इशारा किया। अल्लाह के नबी ने पूछा, जनाबे जिब्रील ये क्या है? फरमाया, मैंने इससे इंतकाम ले लिया है, ये आपकी बेअदबी करता है, हमने इससे इंतकाम ले लिया है। ऐ जिब्रील, किस तरह इंतकाम लिया है? वो थोड़ा सा आगे चलता है, वलीद उसका नाम है। एक आदमी अपने तीर सीधे कर रहा है, तीर सीधे करते करते इस जालिम की बगल में एक अजनबी तीर लगता है और ये जहन्नम रसीद हो जाता है। जहां इशारा किया जनाब जिब्रील ने, वहीं पे तीर लगा है। ये एक गुस्ताख है, एक का नाम असवद है। हजरत जिब्रील उसके सर की तरफ इशारा करते हैं। अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, जिब्रील ये क्या हुआ? फरमाया, मैंने इससे इंतकाम ले लिया है, इससे बदला ले लिया है। उस जालिम के सर में जख्म निकलता है, इस कदर बुरा और नाकाबिले बर्दाश्त सर के जख्मों से इसी तरह थोड़े दिनों में हलाक हो के जहन्नम के अंदर चला जाता है। इसी तरह तीसरा गुस्ताखे पैगंबर है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके पेट की तरफ इशारा किया। अल्लाह के नबी पूछते हैं, जनाब जिब्रील ये क्या हुआ? फरमाया, हमने इससे इंतकाम ले लिया है, बदला ले लिया है। कैसे बदला लिया है? उसके पेट में ऐसी बीमारी लगती है कि उसका पखाना मुंह के जरिए खारिज होता है, पखाना मुंह से निकलता है। ये गुस्ताखे मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाक हो जाता है। और चौथा गुस्ताख है, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं, हजरत जिब्रील ने इशारा किया, उसके पाँव की तरफ, अपने गधे पे बैठा, गधे ने कांटों पे गिरा दिया, पाँव पे कांटा लगा और इस कदर वो जहरीला कांटा है, इसी जख्म से जहन्नम रसीद हो जाता है। और एक अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन है। आप जनाब जिब्रील इशारा करते हैं, उसकी गर्दन की तरफ उसे ऐसा जख्म निकलता है, अल्लाह के हुक्म से जनाब जिब्रील फरमाते हैं, हमने इससे बदला ले लिया है। ये पांचों के पांचों इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीना, एक का नाम वलीद है, एक का नाम असवद है, दूसरे का नाम भी असवद है, एक का नाम आस है, एक का नाम हारिस है। ये हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उन पांचों को हलाक कर देता है और आसमान से रब का कुरान उतरता है, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीना, जो आपका ठट्ठा और तमस्कुर उड़ाते हैं, हमने इन जालिमों को तबाह बर्बाद कर दिया है। अल्लाह वालों, इंशाअल्लाह अगर मुसलमान नहीं उठते तो जनाब जिब्रील आके ऐसे जालिमों को तबाह बर्बाद फरमा देंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते रहा करें, अल्लाह हमें आपकी सच्ची और सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह दीन पे ज़िंदा रखे और दीन पे मारे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुहतरम भाइयों, खुतबा जुमा के लिए जो शख्स अल्लाह की तौफीक से पहले पहुँचते हैं उनका दर्जा, उनका सवाब और अजर बहुत ज़्यादा है। हदीस मुबारक में है, मन गस्सला वगतसला व बक्करा वबतकरा, जो गुस्ल करके, तैयारी करके और पैदल चल के, कोशिश करके जल्दी अल्लाह के घर में पहुँचता है, काना लहू बिकुल्लि खुतवतिन अजरु सनतिन सियामिहा व क़ियामिहा, अल्लाह ताला उसे हर कदम पर एक साल के रोज़े रखने का सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला हर कदम पर एक साल की रातों को नफल पढ़ने का सवाब अता फरमाते हैं। 100 कदम है तो 100 साल। और सुन लीजिए, हम हदीस के तालिब इल्म हैं, पूरी सियासत में और हदीस के ज़ख़ीरा में जितनी फ़जीलत खुतबा जुमा की है बाकी किसी अमल की नहीं है। हर अमल की अपनी अपनी फ़जीलत है, लेकिन चूँकि हम हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले तालिब इल्म हैं तो हम आपको दावे से अर्ज़ करते हैं, जितना सवाब, अजर और दर्जा खुतबा जुमा में हाज़री का है, अज़ान से पहले इतना किसी अमल का अजर व सवाब नहीं, ना कुरान पाक में बयान हुआ है ना हदीसों में बयान हुआ है। अल्लाह हमें अमल साले की तौफीक अता फ़रमाए, दीन पे ज़िंदा रखे और दीन पे मारे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।